Good evening to all the delegates attending this session. A very happy World Homeopathy Day to all of us. I'm Dr. Sangeeta Pillai, and it is my privilege to welcome the second speaker for this evening. Today, I take great pleasure in introducing Dr. Manoj Jaiswal, sir. Dr. Jaiswal hails from Siliguri, known as the gateway to Eastern India. He was brought up in an environment enriched with both literature and medicine, which connected him to homeopathy from a very early age. He completed his DHMS from Pratap Chandra Homeopathic Medical College and Hospital, Kolkata, and began his clinical practice in Siliguri when he initially followed the classical method of homeopathy with great success. A turning point in his journey came when he met Dr. Abhay Kumar from Bagdora, sorry if I'm pronouncing it wrong, who From introduced Bandura. him to the mind method in homeopathy. Has it? From Bandura. He was from Bandura. Bagdora Airport, it is famous. Yeah. Yes. Who introduced him to the mind method in homeopathy. Initially hesitant to adopt this approach, his perspective changed through a personal experience when his son suffered from a prolonged fever that did not respond to treatment over 10 days. Dr. Abhay Kumar suggested hyoscyamus. The remarkable recovery that followed deeply inspired him. Motivated by this experience, Dr. Jaiswal began learning the mind method with dedication, traveling 16 kilometers each way early in the morning. This phase marked a significant turning point in his life and practice. He continues to remain connected with his mentor, Dr. Abhay Kumar, whose guidance still supports him whenever needed. With this inspiring journey, I warmly welcome Dr. Manoj Jaiswal to take over this session. Thank you, sir. Welcome, Manoj Bhai. It's a great pleasure and honor to listen to you on this very auspicious occasion of our great master's birth anniversary. Yeah. It's my darling brother from West Bengal, guys and girls. I love him. Yes. And He's my brother. I always listen to Manoj Bhai's cases. Always I call him Manoj directly. He's younger than me. And he's my darling. Yes, Manoj. Over to you. मेरा ही बहुत बड़ा सौभाग्य है. One incident I remember. जाकर सर इतना हम्बल है, कैसे रेडी रहते हैं सिखाने के लिए कि एक लड़का ने कुछ ऑनलाइन क्लास चालू हुआ था एचएचएफ की ओर से. और हम सब बाहर से पहुंचे थे, मैंने बस से पहुंचा था और शायद मुझे वो भी था, 3-4 दिन पहुंचे थे. Do you have any questions about Dr. Yogi's session or any other questions you can ask? We'll answer you. Any query? Hello. सर नमस्ते सर. Namaste. सर आपका नमस्ते. जो डायबिटिक पेशेंट को सर, हाँ डायबिटिक पेशेंट को सर मैनेज करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टफ हो जाता है, तो ऐसे केस में सर क्या कैसे मुश्किल अपन लगता है? क्या मुश्किल लगता है? इन द सेंस सर उनका जो ब्लड लेवल शुगर बहुत हाई आता है और कैसे कैसे पेशेंट में उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें समझ में नहीं आता है, तो ऐसे पेशेंट को सर कैसे डील किया जाए? ये डायबिटीज कैसा है? डायबिटीज एक तो डिजीज नहीं है ना? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक. और डॉक्टर हैनेमान ने खुद ने ऑर्गेनान में, अगर आपने देखा फुटनोट 138 या जो भी है, मुझे याद नहीं आती फुटनोट का नंबर, हमेशा भूल जाता. उसमें डाइट एंड रेजिमेंट, एक्सरसाइज, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, ये सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है. तो आपको वो लाइफस्टाइल भी देखना है पेशेंट का, ओबेसिटी के बारे में भी देखना है ना? तो वेट वगैरह का भी आपको देखना है, हैबिट्स का भी देखना है. सिर्फ दवाई से आप शुगर क्योर नहीं कर सकते. कुछ दिनों के लिए पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप ये बात को समझिए, लेकिन जब तक उसका लाइफस्टाइल वगैरह चेंज नहीं होता है, यू कैन नॉट क्योर डायबिटीज. बिकॉज डायबिटीज बीमारी नहीं जिसको आप ठीक कर दो, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ लाइफस्टाइल. नहीं, आई अंडरस्टैंड सर योर पॉइंट, पर मैं देखा हूँ यहाँ पर जब मैं ट्राइबल बेल्ट छत्तीसगढ़ नहीं, में आप रहता कहीं हूँ. भी प्रैक्टिस करो, वो उसको थोड़ी ना कोई सोल्यूशन दे नहीं सकते. सर, उसमें सर क्या होता है, अक्सर पेशेंट बहुत लीन एंड थिन रहते हैं, कोई ओबेस पेशेंट नहीं मिलते यहाँ पर मेरे को डायबिटिक में, तो जो कहीं तो फिर आपका फिर बेटा प्रिस्क्रिप्शन गलत जा रहा है. Somewhere your prescription is going wrong. Okay, if the patient is, no, I'm not, Ari Baba, obesity is not the only reason. See, whether the patient sleeps well, how is he eating, whether he eats a lot of starchy food and a lot of carbohydrates. So that also you have to see, na beta. And don't expect the sugar to drop down immediately after you start medicine.
वो सब झूठ है। कई किताबों में भी लिखा है कि आई गिव बेलाडोना 6 एंड देन 15 डेज शुगर ड्रॉप। वो झूठ है वो सब। वो बताओ क्या ना, वीडियो बताओ पेशेंट के हम। वो सब झूठ है। होगा भी तो वो तुक्का लग गया होगा, वो सब झूठ है। इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। इट टेक्स टाइम। ठीक है। तो आप पूरा वो उसको जो है ना होलिस्टिकली सोचिए। हाँ? आप थोड़ा होलिस्टिक विचार करो, मतलब पेशेंट का लाइफस्टाइल से लेकर के आईपीआर में क्या पंगे चल रहे हैं वो भी चीज पे आप थोड़ा ध्यान दो। है ना? ये सब चीजें हैं वो। अगर आपको कोई अगर केस में अड़चन आती है ना, तो आप कॉल करो। तो अपन किसी केस से फिर सीखेंगे। मेरा नंबर तो है आपके पास में, है ना? नहीं हो तो आप गूगल कर लेना, डॉक्टर लियाकत नावाने, आपका नंबर मिल जाएगा। आप जो है ना, अच्छा। प्रैक्टिकल केस मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा कहाँ आप गलत जा रहे हैं। है ना? ओके ओके। ठीक है। मनोज सर को थैंक यू सुनते थैंक हैं। यस मनोज भाई, स्टार्ट। मैं ऑडिबल? अभी क्लियर है? या परफेक्ट। अभी ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं लियाकत सर को फोन करता हूँ। अब बहुत ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं था, आई वॉज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। तो शायद कहीं मैंने सुना था उनको, और मैंने उनको कॉल किया एंड इंस्टेंटली ही वॉज रेडी। 10 मिनट के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, पूरा सेशन लिया। तो इसके लिए शायद कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी लियाकत सर आपसे, एचएचएफ के साथ में मोस्ट प्रॉब्ली। बट उन्होंने कोई बॉदर नहीं किया। But सीखना है, सिखाना है, तो ये इनकी हमेशा रही है। एंड उसके बाद से इनके प्रति जो मेरा आदर था ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कि ऐसे लोग चाहिए डेडिकेटेड फॉर द होम्योपैथी, जहाँ कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, केवल सीखना है, सिखाना है। तो थैंक यू लियाकत सर फॉर दैट डे। वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ये तो बड़प्पन है भाई शुरू तेरा करते यार। हैं। तो हैनीमैन जयंती के शुभ अवसर पर एक छोटा सा केस उन्होंने कहा था कि वुमेन्स क्या चाहती है। मैं कोशिश मैंने की है एक केस के माध्यम से। तो आप हो सकता है भी बैठे में कुछ भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे, आपसे सीखेंगे। तो मेरे केस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं जितना जानता हूँ, आप लोग उससे ज्यादा हमें सिखाते हैं। तो ये केस जो है इनफर्टिलिटी का केस है, और इनफर्टिलिटी के केस में क्या होता है कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, यू कैन इमेजिन कितने समस्याओं से गुजरना पड़ता है, कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कितने लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो एक बहुत पेनफुल एक स्ट्रेस गुजरता है उस औरत के लाइफ में जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा ही इस केस का भी है। वो ये जो बेटी है, ये हसन की है, और इसकी पूरी फैमिली मुझे जानती है। और करीब करीब बहुत पहले से ही ये लोग इलाज कराते हैं, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके लिए ये मेरे पास नहीं आए थे, इसको किसी ने रेफर किया था मेरे को। तो कम्प्लेक्शन जो फेयर कम्प्लेक्शन है, लंबी है, और बाल जो है काफी खुले हैं, थोड़ा चौड़ा फेस है, और बहुत अच्छा बोलती है, और तेज बोलती भी है, फास्ट। तो ये अपने हस्बैंड के साथ आई और अपनी मदर के साथ आई। और बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रही थी। एंजाइटी, रोज फ्रस्ट्रेशन, सारी चीजें नजर आ रही थी इसके चेहरे पे। उदासी थी, इरिटेशन था, सारी चीजें थी। There's a mixture of all the emotions were there. तो उसकी मम्मी ने ही शुरू किया कि she is not conceiving, and for this she went here and there and consulted a lot of doctors, and all checkup were normal. Do not know why she is not conceiving. So one of your patients suggested your name,
because she got pregnant after your medication. तो मैंने भी चुटकी ले ली, मैं छोड़ू क्यों गई। मैंने बोला कि आप तो मुझे ऑलरेडी जानती है ना, फिर आपको किसी ने रेफर किया, थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं डॉक्टर साहब, हाथ में ही नहीं आया ना, और कहाँ कहाँ घूम आई, और देखो आपके यहाँ जो है ये ठीक हुआ था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि होम्योपैथी में ये ठीक होता है। तो खैर जो भी हो, उसने कहा। तो ये जो लेडी है इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यूटीआई की प्रॉब्लम, सीवियर यूटीआई की प्रॉब्लम है। कई बार डिफरेंट, इसको एक बात और है कि इसका हमेशा डिफरेंट मेडिसिन लगती है, एक मेडिसिन कभी नहीं लगती है। यूटीआई की प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी है, माइग्रेन भी है, पिशियोडी भी है, इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट ले रही थी आफ्टर द मैरिज। 3 साल तक मैरिज, और मैरिज के बारे में थोड़ा सा बता दो कि इसकी जो मैरिज है, लव मैरिज है। पेरेंट्स वर नॉट रेडी, लेकिन कहते हैं ना, चुप गए, करें तो क्या करें। तो इसका हस्बैंड जो था ना, मैंने देखा था पहली बार जब आई थी, आई वाज सरप्राइज्ड। एकदम मतलब क्या कहते हैं ना, दो विपरीत कंडीशंस थी, एकदम मोटा सोटा, एकदम काला कलुटा, ऐसा था वो। जबकि ये बहुत सुंदर थी, बाल भी बहुत घुंघरीले थे। तो इस तरह का था, तो मैं समझ में नहीं आया कि भाई कैसे प्यार हो गया। तो क्या हुआ वो बाद में बताएंगे उसने, तो हम लोग कहेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे बहुत सीवियर बैक पेन रहता है, और मैं हाथ भी लिफ्ट नहीं कर सकती, ऐसे दिखाया उसने, या हाथ भी नहीं उठा सकती, इतना प्रॉब्लम होता है, इतना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, दर्द से परेशान। हाथ का जो है नर्व जो है सेंसिटिव हो गया है, ये नर्व ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसने दिखाया कि ऊपर नीचे होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा लगता है कि अंदर से हिल रही हूँ, गिर जाऊंगी। मैंने पूछा बाहर से या अंदर से, कि नहीं, अंदर से लगता है, महसूस होता है कि बहुत ज्यादा हिल रहा है। तो और क्या प्रॉब्लम होती है? कि रोज वॉमिटिंग होती है, रोज होती है, रोज जो है ना सर दर्द रहता है, डकार आने लगता है, शोल्डर पेन हो जाता है, और मूड स्टूल होने से, मूड स्टूल जब होता है इसको, तो वो ओआरएस लेने से जो है इसकी ठीक हो जाती है। जैसे मूड स्टूल का ओआरएस ले लेती है उससे ठीक हो जाता है, दवाई नहीं लेती उसके लिए। तो ऐसा लगता है ना सारा प्रॉब्लम मुझे ही हो गया है। फिलहाल तो मैं दर्द से परेशान हूँ। दर्द होने से ना, तो ना तो सो सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती। टेंशन भी बहुत है। 3 साल हो गए, कंसीव नहीं कर पाई, बहुत टेंशन में रखा है। लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, फिर गुस्सा आता है, चिल्लाने लग जाते हैं, और चक्कर बहुत आते हैं, जैसे ही रेस्ट करके उठते हो चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है गिर जाओगे। फिर उसका मन जो है ना बहुत उदास सा हो गया था, बल्कि लगता है अब ठीक नहीं होगा। 10 साल से इतनी दवाई खा चुकी हूँ, लगता है मेडिसिन ने भी काम करना बंद कर दिया है। लगता है अब बाहर जाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हैदराबाद जा चुकी हूँ, कोलकाता भी जा चुकी हूँ, वेलोर जाने की सोच रही हूँ। तो एक्चुअली ये वेलोर जाने का प्रोग्राम प्लान कर ही रही थी। तो फिर किसी ने बोला कि यार उनके पास चले जाओ, हमारे भी बच्चे नहीं हो रहे, तो हम लोग भी बहुत जगह घूम लिए, इनकी दवाई खाई और बच्चा ठहर गया। तो इस कारण से बोले कि फिर आपके पास आई, तो कोई एंजाइटी रहती है आपको, तो कंसीव नहीं हो रहा है, बस यही चिंता है। लोग सब पूछते रहते हैं, क्या बताऊं उनको, क्या बताऊं। कहते कहते वो रोने लगी, आंसू आ गए उसके आंखों में। तो मैं थोड़ा साइलेंट हो गया कुछ देर के लिए, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। तो फिर मैंने पूछा गुस्सा आता है? तो ऐसे मुझे मालूम था वो बहुत गुस्सैल नेचर के, थोड़ा जिद्दी। उसके पेरेंट्स बेचारे उसके सामने क्या कहते हैं ना, कुछ कर नहीं पाते थे, इतनी जिद्दी थी वो शुरू से ही बहुत ज्यादा। तो बोल के बहुत आता है, जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं,
तो बहुत गुस्सा आता है। बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरी क्या गलती है? मैं उसके लिए दोषी हूं क्या? मैंने खुद किया है क्या? अब नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? सभी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। मेरी क्या गलती हो गई? लोग हमें बोलते रहते हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा क्या करती हो, गुस्से में क्या करती हो? तो उस समय ना एकदम से भींच गए, मन का मुठिया भींच गए, बोले, मन करता है ना मार डालो। जोर जोर से चिल्लाती हूँ हस्बैंड पर। फिर जब गुस्सा ठंडा होने पर ना मन दुखी हो जाता है। बेचारे को क्यों डांटा? वो तो कर ही रहा है ना। इतना सब कहाँ ले, जहां जहां बोल रहे हो वहां ले जा रहा है। बेलोर भी वो हैदराबाद ले गया, कोलकाता ले गया, सब जगह तो ले जा रहा है, खर्चा भी कर रहा है। कमी तो उसने नहीं की है। तो फिर मन जो है दुखी हो जाता है सोच करके क्यों डांट दिया। मैंने कहा, और क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि जब वॉमिटिंग जब बोले कि जब एक्सरसाइज करने के बाद जो है होती है, खाने के बाद यदि काम करने से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ज्यादातर बैठकर काम करती हूँ तो ज्यादा वॉमिटिंग होती है। लेकिन खड़े होकर यदि काम करती हूँ तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने बोला, खाने में क्या पसंद है? बोले, मीठा बहुत पसंद है। उसके चेहरे पर जो है ना वो क्या कहते हैं, ग्रीडीनेस, लालच चली आई कि हम मीठा मिल जाए और कुछ हो जाए। लेकिन डायबिटीज होने के बाद भी खा लेती हूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। और इस पर वो मुस्कुराने भी लगी। मैंने कहा, नींद कैसी है? तो सिविलियम लेने के बाद से डिस्टर्ब है। तो ये माइग्रेन के लिए किसी डॉक्टर ने सिविलियम प्रिस्क्राइब किया है। तो जब से वो लेना शुरू किया, इसकी नींद जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैंने पूछा, पसीना कैसा आता है? तो वो नॉर्मल है, पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। पानी की प्यास कैसी है? नहीं ठीक है, नॉर्मल है। कम भी नहीं पीती तो बहुत ज्यादा नहीं पीती तो कम भी नहीं पीती, पी लेती हूँ। घर में तो मैंने फैमिली हिस्ट्री पे ऑलरेडी मालूम था, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और अभी वो बिल्कुल ठीक है, इवन आज भी ठीक है, आज करीब 20-25 साल हो गए, अभी बिल्कुल ठीक है वो। उसका उसने केमो लिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो ये लोग मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं। और वो जो मॉम जो है ना, उनको लगता था कि इसलिए बोले कि आपके पास, मैंने मेरे पास कहा आपका चार्ज इतना हाई है। मतलब क्या आप बैंगलोर घूम के आ गए और हैदराबाद घूम के आ गए, वो चार्ज हाई नहीं लगा? अपनी बातचीत हुई तो आप चार्ज बहुत हाई इसीलिए नहीं आपके पास आती। तो इस लड़की ने वो लव मैरिज की है। तो इसकी हस्बैंड ने जो उसको बताया, जो पेशेंट को, मैंने सबको भेज दिया क्या, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो उसने बताया कि टेंशन क्या है कि कुछ नहीं है, अभी पैसे रुपए का बने, ये कुछ काम हम नहीं करते हैं, ऐसे ही है। तो इन्होंने जब बताया था कि मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये है, वो है, ये है, इतने बड़े बगान में बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस है, ये सब बताया था। लेकिन जब शादी होने के बाद पता चला कि हस्बैंड जो है कोई बिजनेस ही हैंडल नहीं करता, उसको कैसे हैंडल करना जानता ही नहीं है। एक बार उसको दिया गया था, उसके पिताजी ने लिया, इतना ह्यूज लॉस कर दिया कि उसके पिताजी अब उसे भरोसा नहीं करते हैं। सारे बिजनेस जो है कंट्रोल में उनके पिताजी के ही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके पिताजी ने एक बिजनेस शुरू किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम का। ये बनाया था। ये भी मुझे मालूम पड़ा कि मैं अपने पेशेंट देखने गया था, तो ऐसे निकला तो हम भी गए। तो बोले कि आइए, ये शोरूम खोल रहे हैं, तो देखा मैंने कि बहुत अच्छा खासा शोरूम खुला हुआ है। तो उन्होंने करवा दिया था। अब इस बंदे ने क्या किया, भर भर के सबको क्रेडिट देना शुरू किया, वो भी नेपाल में। और इसमें क्या है कि अब रिकवर करने की हिम्मत नहीं होती है तो पैसे डूब जाते हैं। तो सब ले गए और एक एक को मैंने 50-50 हजार, लाख लाख, 2-2 लाख, 5 लाख, इतना इतना सब अच्छा अच्छा अमाउंट दे दिया था उसने। मिला नहीं तो बिजनेस में डूब गया, वो क्रेडिट रिकवरी नहीं कर पाई। अल्टीमेटली फिर से ह्यूज लॉस हो गया। तो उसके फादर इन लॉ में, इसके जो पिताजी हैं, उसने भी हाथ जोड़ लिए उसके।
तो अल्टीमेटली एक टेंशन रहती है कि हस्बैंड कुछ नहीं करता। उसके बाद वो क्या मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था बंदा। तो ये वो अच्छा ठीक है, और क्या है, ठीक है। तो बंदा आया है अपने डिप्रेशन के लिए, लेकिन आप तो खुद का डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे, तुम दूसरों को क्या मोटिवेट करते हो? नहीं नहीं, मेरा बहुत नाम है एकदम, लोग मुझे जब जाता हूँ तो लोग मुझे कदम उठा लेते हैं और जमीन पर नहीं रखने देते हैं। आप वीडियो देखिएगा, करके बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। तो चलो वो चैप्टर खत्म है, फिर हम इस केस पे आते हैं। तो इस लेडी को मैंने दवाई दी। दवा देने के बाद आ, अच्छा इसमें नहीं है क्या, एक मिनट। हाँ, 24/4 को मैंने दवाई दी थी। फिर 21/5/16 को आया कि कोई भी तकलीफ नहीं है, केवल उल्टी जैसा जो है, फिर से 3 दिन से वॉमिटिंग लग रही है। मैंने 30 पोटेंसी फिर से रिपीट कर दी। इसके बाद मेरे पास 2/6/16 का रिपोर्ट आई, कंसीव हो गई। लेकिन मजे की बात क्या बताया इसने, कि वो आपकी दवाई से नहीं हुई। मेरे को और दवाई ली थी नहीं, वो बाबा जी से आशीर्वाद लिया था। तो इसका क्रेडिट भी बाबा जी ले गए, जो नॉर्मली होता है। तो यही केस था, उसके सबसे बाबा जी ने ठीक किया। आप लोगों को क्या लगता है बताइए? तो केस को डिस्कस करें या डायरेक्ट रेमेडी पे आ जाए? जी सर, अगर कोई बोलना चाहता है तो ले सकते हैं। बताएंगे अपना क्या लग रहा है उनको, क्या मेडिसिन होनी चाहिए इस केस में, या क्या लगा इसको लेकर। डॉक्टर रसीदा है यहाँ पर? क्या सर? डॉक्टर रसीदा है क्या? हाँ जी सर, मैं हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, आप बताओ आपको क्या लगा, आप बहुत डायनामिक हो एकदम। ये भी सर बहुत नया शुरू किया इन्होंने सीखना, लेकिन बहुत तेजी से सीख रही है। तेजी सॉरी से सर, सीख मैं जरा बाहर हूँ, मैं थोड़ा टाइम में देती हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ओके है, सर, कोई थैंक बात यू सर। ओके। नहीं, बहुत अच्छा। कोई बताए या मैं डिस्क्लोज करूँ? जी जी सर। तो इस केस में जो है ना, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले इसने जो शादी जो की ना, क्यों की, यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कोई मैचिंग नहीं थी। तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि भाई इसने इसको कैसे पसंद किया। जहाँ तक मैं उसको जानता था, ये बहुत मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सब कुछ अच्छे अच्छे चाहिए, सब ब्रांडेड चाहिए, परचेजिंग बहुत अच्छी करती थी, घूमना फिरना मस्ती करना इसको बहुत पसंद था। तो ऐसा क्या इसमें मिल गया इसको? तो उसने बताया कि बहुत रिच बताया था, बाद में देखा कि कुछ भी नहीं है। तो इसका एम्बिशन क्या था, इसने क्यों उससे प्यार किया? क्योंकि इससे शादी करेंगे तो बहुत अच्छा, मैंने क्या कहते हैं ना, कुछ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ऐसो आराम रहेगा, सब कुछ रहेगा, बिकॉज ही इज वेरी रिच। लेकिन आफ्टर मैरिज क्या हुआ, सी केम टू नो द रियलिटी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, दिस वाज माय फर्स्ट टॉपिक।
और बोले कि मेरा तो पता नहीं, अब लगता है ठीक नहीं होगा, बहुत सारी मेडिसिन खा ली, मेडिसिन ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। तो डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ एंड शेकिंग एंगरिंग, गुस्सा आता है तो बहुत चिल्लाती है। एंड डिलीजन ट्रैवलिंग ही वाज विदाउट ट्रैवलिंग बट। तो जब ये सारे रूब्रिक्स लगाया तो इसमें कई मेडिसिन बहुत पास पास चल रहे थे, नक्सवामिका, पल्सेटिलाटल, कमारा, दे आर वेरी क्लोज, बट जिंकम मेटालिकम केम आउट ऑफ दिस रूब्रिक्स। अब हम इसमें और भी यदि हम लोग देखते हैं तो ये क्या करते, चिल्लाती थी बहुत ज्यादा, चिल्लाने के बाद बाद में जब ठंडा होता था तो उसे रियलाइज होता तो क्या मैंने बेकार में डाल दिया, उसका उदास हो जाती थी। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद सैडनेस, स्वीट डिजायर, एंगर अराउज्ड व्हेन, जब उसे कोई पोक करता था, पूछ लेता था, ताने दे देता था तो उसका गुस्सा चढ़ जाता था। तो इतना गुस्सा चढ़ जाता तो मन करता है मार ही दें, और एकदम इस तरह से मुट्ठी पिच के जैसे छुरा पटकते हैं। एंगर स्टैब्ड एनीवन सो एंग्री दैट ही कुड हैव स्टैब्ड। एंड एंगर टॉक व्हेन हियरिंग अदर्स पीपल, जब वो दूसरे लोगों की बातें सुनती थी, उनके तरह तरह के ये सुनती थी, उसको गुस्सा आता था। और बहुत ज्यादा कंफर्मेटरी सिम्टम्स था जो फिजिकल से था यहाँ पर, वो है स्टमक वॉमिटिंग, exertion aggravation, or this is the confirmatory key as this is very peculiar though it is a physical symptom। फिजिकल सिम्टम होने के बाद भी ये इतना पिक्यूलियर है कि वॉमिटिंग काम करने से, एक्सर्शन से कितने लोगों की पड़ती है। So this was very red line guiding symptom, ये भी जिंकम को कवर कर रहा था, तो आई वाज श्योर अबाउट द इरिमेटिक जिंकम ही है। इसको मैंने जिंकम 30 दिया था, दो डोज दिया गया था, एक दिया था 26/4/16 को, और दूसरा दिया था 21/5/16 को। 3 दिन से फिर से नौशिया हुआ, और उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, और 2/6/16 को तो प्रेगनेंट ही हो गई। ठीक है। तो एंगर जो है ना, इसको क्या है कि थोड़ी सी चीजें भी इसे बहुत अफेक्ट कर दी है, इसलिए एंगर ट्रिफल्स अबाउट अफेक्ट्स टू मच, विच मच एंगर स्टेप वाली बात थी। तो ये टॉक्स एंग्री से बोलना में जो है ना बहुत गुस्से में होता है। तो ये सारे जो है सिचुएशन थी इसके साथ में, दैट्स व्हाई आई प्रिस्क्राइब जिंकम मेटालिकम। अब इसमें यदि किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। वॉमिटिंग वाला क्या रूब्रिक लिया सर? वॉमिटिंग का है कि वॉमिटिंग एक्सर्शन एग्रावेशन, स्टमक वॉमिटिंग एक्सर्शन एग्रावेशन। सर उसमें एक रूब्रिक तो बताया ना आप, वो इसमें मेरा क्या गलती है सर? मैं तो सब कुछ करवा दिया, पर मैं तो कंसीव नहीं कर पा रहा हूँ, इसको सर आप कैसे लिए? तो मैंने कुछ लिया नहीं, मेरी मेडिसिन आ गई थी, मैंने मेडिसिन दे दिया था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, उसको एक्यूज कर रहे हैं, अब उसकी गलती नहीं है फिर भी सी हैज बीन एक्यूज्ड। और जिंकम एक्यूज्ड की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जहां पर ये फील आता है 30-40 शायद उसमें रेमेडी है जहाँ एक्यूज्ड की फील है। और तो ये है कि उसको एक्यूज किया जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, आप दोषारोपण कर रहे हैं ना, और मेरी गलती है ही नहीं, मेरे हाथ में तो है नहीं ना कि बच्चे पैदा करना। अब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरी अपनी कोशिश जारी है, मेरे में कोई गलत भी नहीं है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो मैं कहाँ गलत हूँ? फिर मुझ पर ताने क्यों कसे जा रहे हैं? सो दिस इज डेल्यूजन एक्यूज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये रूब्रिक छूट गया था। क्लियर हो गया? जी जी सर सर, आप थैंक सर आपने ट्रेम्बलिंग का क्या रूब्रिक लिया है? ट्रैवलिंग है जिंकम की दोनों तरह के जिंकम में ट्रैवलिंग होती है। इसका ट्रैवलिंग क्या था कि ट्रैवलिंग एक्सटर्नल था, इंटरनल ट्रैवलिंग थी। तो हमारे पास जो रूब्रिक डेल्यूजन ट्रैवलिंग, ही वाज ट्रैवलिंग, एक मिनट, एग्जैक्ट रूब्रिक, हाँ, डेल्यूजन ट्रैवलिंग, ही वाज ट्रैवलिंग विदाउट ट्रैवलिंग बट, ये है रूब्रिक। एक बार बताना पेशेंट ने कैसे एक्सप्रेस किया था सिम्टम? अब बताया था ना उसने कि जैसे लगता है ना शरीर जो है भीतर से कांप रहा है।
लेकिन बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा। तो मैंने उसे कंफर्म किया कि बाहर से भी दिखता है या केवल भीतर आपको महसूस होता है। उसने बताया कि नहीं, केवल भीतर महसूस होता है, बाहर से नहीं दिखता। बाहर से कोई कंपन नहीं दिखेगी किसी को, लेकिन अंदर से मुझे महसूस होता है कि मैं एकदम कब कभी चल रही है, मैं हिल रही हूँ, गिर जाऊंगी, ये सारी चीजें मुझसे महसूस हो रही। तो फियर फॉलिंग भी था, लेमेंटिंग भी था, वीपिंग, और एक अच्छा टॉपिक ले सकते हैं, वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम। सिर्फ सफर्ड रॉन्ग भी ले सकते हैं। मान सफर में क्या है, किसी एक पर दोषारोपण करता है कि उसकी गलती के कारण से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तो जिस प्रॉब्लम के लिए मुझे आई है उसके लिए वो दूसरों को भी गलत नहीं ठहरा रही है। लेकिन ये भी है कि मैं भी तो गलत नहीं हूं ना, तो मुझे एक्यूज क्यों किया जा रहा है। और सर रॉन्ग सपोर्ट में आपका क्या होता है मेडिसिन कि में कंसीव होने के बाद भी वो आप मतलब आपको ये रेस्पेक्ट नहीं दिया ना, वो बोला कि बाबा के हाँ, कारण हो गया। बाबा ये भी सुपरस्टिशियस में भी है, ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो उसे इन अच्छा। सब अंधविश्वासों पे ज्यादा भरोसा है। अनग्रेटफुल है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बट हाँ, दिस इज अनग्रेटफुल। इनकम इज द सुपरस्टिशियस रेमेडी। और एक बात देखिए, बहुत अच्छी है, हम लोग थोड़ा सुनी से को रिलेट कर सकते हैं सीखने के लिए। और ज्यादातर आप बताएंगे इसके बारे में। आर्ट इनएबिलिटी फॉर, इसने क्या उसे फंसाने की कोशिश की ना, लेकिन कोई ट्रैप हो गई। तो ये पेड़ फंसाने की है ना, ये उल्टा फंस जाती है, क्योंकि इसके अंदर वो आर्ट नहीं रहता। तो मैं इसको इस तरह से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जैसे बताएंगे। और इस रेमेडी की क्या है ना, कि फादर से बहुत ज्यादा अटैच रहती है, और इसका कंफ्लिक्ट भी फादर के साथ ही होता है। ये क्लियर सा कॉम्बिनेशन मिलता है यूजुअली जिनका मैं। क्वेश्चन किसी का? एंगर अराउजल इवेंट के बारे में बताइए। हाँ, एंगर अराउज में, अराउज में क्या करते हैं, जैसे किसी को भड़काया जाता है। अब मैं आराम आराम से शांति से बैठा हूँ, ठीक है, यस। और मुझे उल्टा पुल्टा लगेगा। मेरा नेचर नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, अब कोई इवोक करता है, प्रोवोक करता है, कुछ उल्टा पलटा बोल दिया, कुछ ये भी कर दिया, कुछ आग लगा के चला गया ना, तो शांत होने के बाद भी भड़क गया, कुछ ऐसी बातें बोल गया। लेकिन मेरा अपना इंटेंशन झगड़ा करने का नहीं था, मुझे गुस्सा करने का नहीं था। तो इसका क्या है कि ये शांत है, अब लोग आके पूछने लगते हैं क्यों नहीं कर रही है, क्या दिखा नहीं रही है, तो उसका गुस्सा भड़क जाता है, बार बार टोकते हैं, बांझ है क्या, जो नॉर्मली सुनने को बहुत ज्यादा मिलता भी है ऐसे औरतों को, जो है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो जो लोग बहुत से लोग होते हैं, विशेषकर जो पुराने लोग होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा ही बोलते हैं, वो इस तरह का दोषारोपण भी कर देते हैं। बोल भी देते हैं कि इसकी तो इसको तलाक दिलवा दो, या इसके बेटे की दूसरी शादी करवा दो, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो किसी का दिमाग गर्म होगा ना, तो इसको गुस्सा आता है यदि इसे कोई प्रोवोक करे। थैंक क्लियर है? कोई डाउट है भाई? तो जी सर। बढ़िया सर, इनकम इनफर्टिलिटी में। बहुत फास्ट हुआ। में था कि सबको ये कि इसको लाइफ में क्या चाहिए, लोगों की प्यार मोहब्बत, इसके लिए वो आई थी, यही उसको चाहिए था। और उसे मिला क्या, ताने मिल रहे हैं, एक्यूज किया जा रहा है, जिसके लिए वो खुद उत्तरदायी है, कोई गलती ही नहीं है। शायद तो वो क्या कर सकती है। जी। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू लेकर सर, पाटिल मैम, to allow me to present my case on this platform. So thanks a lot.
Thank you so much, sir. हाँ मैंने बोल। अच्छा, अब ये सुन। हाँ, अब आप कुछ इसमें बताइए, कुछ और नया पॉइंट्स, क्योंकि आपसे सीखने को बहुत मिलता है। आपके थोड़े थोड़े टिप्स होते हैं ना, जो बड़े आसानी से केस को निकालते हैं। तो इसमें और क्या था, बहुत पिक्यूलियर था, जो मेरे से क्या रेमेडी ओवरलुक था हुआ है। अपना इसमें? रेमेडी कौन सा था, मैं निकल गया था, सॉरी। जिंकम मेटालिकम। हाँ, जिंकम मेटालिकम, हाँ। जिंकम में तो मैं ज्यादातर ना भाई, आई गो, मतलब ऑफ कोर्स मेरा जिंकम का ज्यादा एक्सपीरियंस जो है मोर ओवर इन द कोरिया केसेस, हर्पीस केसेस। पार्किंसन में बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कई हर्पीस में केसेस में जब और पोस्ट क्लासिकल करता हर्पेटिक था तो न्यूरल्जिया, पार्किंसन में यूज करता था। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया बहुत ज्यादा। यस। और पीडियाट्रिक में कुछ केसेस में मैं यूज किया हूँ जहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट जो है ना, आपको लगता है कि कार्सिनोसिन जैसा आईपीआर लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला आईपीआर मिलेगा आपको। हाँ, स्ट्रिक्ट आईपीआर मिलेगा बहुत ज्यादा। एंड देन द पर्सन द चाइल्ड लूजेस इट्स, द चाइल्ड लूजेस इट्स कॉन्फिडेंस। उसमें मैंने मतलब जैसा कार्सिनोसिन नहीं, वैसा बहुत नॉटी होता है पहले, है ना। फिर उसको घर वाले ज्यादा ये करने की कोशिश करते, डिसिप्लिन करने की कोशिश करते, और फिर वो जैसा ओबिडियंट वगैरह बन जाता है। तो वो सिचुएशन में अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं काम कर रहा है, तो यू थिंक अबाउट जिंकमेट, बिकॉज जिंकमेट और अब्राटिनम, ये दो रेमेडीज अगर तुझे याद होगा तो अपने कॉलेज डेज में अपन इसको सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस, सप्रेशन ऑफ यस। इरप्शन, ये दो सप्रेशन में ऑफ अपन डिस्चार्ज में, अब्राटिनम और जिंकमेट व्हेन है, है ना? विशेषकर जब मैंने वो निकालने में एबल नहीं होता है, वाइटलिटी सो मच लो दैट इट इज हाँ, अनेबल टू थ्रो इट आउट, तो उसमें जिंकम एग्जैक्ट, मेटालिकम देते थे। दिस इज द हाँ, मेन एलन की नोट्स का जो है ये था, एग्जैक्टली। तो इतना ज्यादा सप्रेशन, वीक होता है मेटल होने के बाद भी। हाँ, एग्जैक्टली। तो सप्रेशन में जिंकम का जरूर सोचना। क्या हो जाता है ना, अपन कई बार ना ये कुछ पॉइंट्स अपन भूल जाते हैं। सेपरेशन ऑफ डिस्चार्जेस मतलब क्या है? डिस्चार्ज इज लाइक योर एक्सप्रेशन। ओके, क्योंकि छोटे बच्चों में एक्सप्रेशन ज्यादा वर्बल नहीं होता है, दैट इज थ्रू द एक्शंस दैट दे डू। सो दीज आर द डिस्चार्जेस एक्चुअली ऑफ द चाइल्ड। तो इन दैट केस इफ द चाइल्ड इज हैविंग एटमॉस्फेयर वेयर दे आर लाइक कालिका मदर हो, या फिर बहुत आर्सेनिक दादी हो, ठीक है, या आर्सेनिक दादा हो, नक्सवामी का दादा हो, नक्सवामी का दादी हो, या नक्सवामी का पेरेंट्स हो, या टीचर्स के बच्चे हो, where both the parents are little dominant and too much into discipline and all, and in that case, then zinc is very much useful in the pediatric cases. Baki to your case was fantastic, completely. Yeah. Yes. Manoj bhai has always a different angle of reaching the remedies, mashallah. I think Mansi, आपसे ही it's सीखा था। are come on, yeah. Mansi, it's too late, एक beta. अगर I सही से। think I should take the lecture on Thursday because I have two, three cases which I don't want to, just finish in 2 to 3 minutes. So I would want little more interaction and little more involvement of the, uh, audience. So I think coming Thursday or whatever you tell me, come on that day. है ना? It's two lectures and both the remedies are new for the audience today. है ना? 3 remedies, in fact, we have discussed Crataegus also. है ना? Yes. So Crataegus, Arjuna, and Zinkum met. I think it's a good treat on Great Masters birth anniversary. So let's keep my lecture on any of the Thursdays. I will discuss women's cases in that. That'll be better, right? So
Thank you very much, everybody. It's every year we have a bonanza on our great master, Dr. Samuel Hahnemann's birth anniversary. We will be continuing this tradition. Inshallah, we wish to continue this tradition of celebrating our master's birthday forever, inshallah. Even if we are there in this world or not, our kids are there, and this shall be passed to the next generation. The baton will be passed to the next generation. It's a relay, yes, not a race, but it's a process. It's passing through generations is what we believe in. That's what is our belief. That's what is our trust. What Dr. Hahnemann has taught us, his teachings through his cases, and through the great science of humanity. It's a complete science of life, I must say. So I have very few words. I cannot talk more whenever I come across very great personalities. So I fall short of words, though I'm a poet, I'm a writer, voracious speaker, I believe. But whenever I have to talk, because at such times my heart gets filled with the work that they have done, the gratitude, the what I overwhelming feeling of being a part of such a great science. So thank you very much for being there with us. Thank you to both of my speakers, both are my brothers, Yogi and Manoj. ये दोनों Same मेरे here, sir. भाई भाई हैं. It's a great pleasure to listen to both of you always. And I really wish that Yogi comes every month to us, at least once a month. Mansi, see to it that you call Yogi's bhai. Yeah? He's always there at our beck and call. I know. Yes, sir. Sure, sir. Sure, sir. I know. I love him. And the same is reciprocated in multifolds by both of my brothers. So I really wish both of them a great life ahead. All the very best luck in their future endeavors and in their research. Thank you very much, Yogi. Thank you, Manoj bhai. मैं जल्दी सिलीगुड़ी आऊंगा इंशाल्लाह. है प्लान इतने 2 एक बिल्कुल महीने में. बिल्कुल तेरे पास और आएंगे तो मेरे यहाँ ही ठहरेंगे और कहीं नहीं ठहरेंगे ऑफ कोर्स वही तेरे पास ही रुकूंगा. ऑफ कोर्स तेरे पास ही रुकूंगा. सवाल ही नहीं आता है यार. चलो तो इंशाल्लाह we'll meet soon, guys, and see you around every Thursday. We are there to bore you on. What do you, Mansi, you want to say? Yes. Just want to say thank you, Yogesh sir, thank you Manoj sir for coming on a short notice, and we are celebrating the great master's birthday today. So thank you very much. Thank you, Liaquat sir. Thank you all the audience, and thank you my PHF team. Thank you everyone. Thank you and have a good night. सर लियाकत सर का बाकी रह गया सर. हाँ मैं सर आएंगे. मैं आता हूँ ना, थर्सडे पे आता हूँ. थोड़ा सा मैं अभी 3 केसेस है मेरे पास में जो मैं डिस्कस करना चाहता था. लेकिन कैसा ना थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा तो वो केसेस पढ़ाने में मजा आएगा. आप समझ लो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेक्ट करो ताकि आपको वो प्रोसेस पता चले किस तरीके से प्रिस्क्राइब करना है, किस तरीके से रेमेडी तक पहुंचना है. मेरा हमेशा ये एम होता है कि आप तक वो वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में दो आप लोग. आप समझ लो, वो विजन दो. नहीं तो हर एक रेमेडी के ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास में अभी तो हजारों केसेस हैं माशाल्लाह. In hundreds, so we have cases of almost many of the polycrust, almost 50 polycrust, 50, 60 polycrust. We have cases in hundreds. But I want you all to learn the process of reaching the remedy as to what question you should ask. You know, when the patient says something, then आपके दिमाग में क्या चल के आपका क्वेश्चन किस तरीके का आना चाहिए, वो प्रोसेस में आप लोगों को सिखाना चाहता है. रेमेडीज तो आपको किताबों में भी है, यूट्यूब पर भी है माशाल्लाह से. सारे लोग इतना एफर्ट ले रहे, इतने खुद से होते दिखे, वहां पर आपको रेमेडीज मिलती है. मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो प्रोसेस समझें कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन दिल पूछना है, कौन सी बात
से क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है कि एक क्वेश्चन आप पूछते हो कैसे, और जो पेशेंट इस तरीके से बोलता है कि हाँ ठीक हो, अच्छा हो, आप कैसे वगैरह, ये जो रिस्पॉन्स आता है, फिर आप जिस तरह की क्वेश्चन फ्रेम करोगे, वो मुझे आप लोगों को पढ़ाने की मेरी एक ख्वाहिश है, और कोशिश भी हमेशा वही रहती है। मेरे जो मंगलवार के जो हमारे प्राइवेट सेशन चलते हैं उसमें मैं यही पढ़ाता हूँ, और ये नहीं कि मैं उसी में पढ़ाता चूंकि पेड लेक्चर्स है, मैं इसमें भी आपको वही चीज पढ़ाऊंगा। बस इसमें लिमिटेशन ये होते हैं कि मैं वीडियो केस नहीं बता सकता, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, इसमें नहीं बता सकता, है ना, सोशल प्लेटफॉर्म। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ज्यादा वक्त मिले, ताकि आप भी थोड़े फ्रेश रहे। मैं तो फ्रेश हूँ, मैं रात भर बैठ सकता हूँ, लेकिन वो जो इंटरेक्शन का जो मजा है वो आ जाए तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए मुझे क्षमा कीजिए, और आप आज इतना अच्छा पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको वो प्रोसेस कर नहीं पाओगे आप, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 500 से ज्यादा लेक्चर्स ले चुका हूँ, सेमिनार्स ले चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कितना मटेरियल आप, मतलब हम लोग ले सकते हैं एज ए ह्यूमन। नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए, मैं हूँ of course, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। यूट्यूब पे पोस्ट किया है सर का वीडियो आज का, वो भी हाँ, आज का मैं लेक्चर केस डाला हूँ, छोटी एक बहुत अच्छी केस है, आप देख लीजिएगा, बहुत नक्शल में है, और बहुत जल्दी इसमें हमने क्लिक भी किया है, देख लीजिएगा। मैंने एक यूट्यूब पे डाला है, नया रेमेडी है लैक्टोआ विरोसा। तो ये शायद आज तक कभी माइंड से प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है। दैट इज ए वंडरफुल रेमेडी। एग्जैक्टली। तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। जी। थैंक यू। चलिए, ओके। सर गुरुवार को कैसे आपसे कांटेक्ट हो पाएगा सर? गुरुवार को होता है ना, अपना होता है ना, गुरुजी के साथ गुरुवार का सेशन चल रहा है, आप ग्रुप